we are on the recording. Assalamu alaikum. And today we are going to solve question number 5 of exercise 8.1. Before start the exercise question number 5, let's see the example. Example number 2. Eliminate t from the given question. Example, you have x upon a is equal to 1 plus t square upon 2t and y upon b is equal to 1 minus t square upon 2t. Here you have question. Ismail, can you see the lecture on the screen? Yes, miss. Okay. Student, you have given question in a fraction form. Okay. X upon a is equal to this and y upon b is equal to 1 minus t square upon 2t. X upon a and y upon b. Right hand side on both terms are the same, but there is a sign difference. आपको नजर आ रहा है sign difference. So first equation, x upon a is equal to 1 plus t square upon 2t is considered as equation number 1, and y upon b and is considered as equation number 2. Okay, to solve the question, we need to make the comparing the equations. We need to squaring both the equation 1 and 2, just like this. X upon a, when we squaring both sides, so it become x square upon a square, and it become 1 plus t whole square, as like just like this. It become, when we do square, apply square on both sides, it become 1 plus t square upon 2t. Okay, for comparing both equation, it we apply the square, and then it become just a second, it become x square upon a square, open bracket, and simplify the terms. And then 1 plus t square has whole square, 1 plus t square whole square already, and then square of 2t, 2 square 2, 2 power 2 mean 2 2s are 4, and it become t square. Okay, and this bracket will be solved with the help open with the help of a plus b whole square formula. ये ओपन होगा a plus b whole square की हेल्प से, which is equal to, कैसे होगा, let's see, which is equal to a plus b whole square, a square, 1 square, 1 का स्क्वायर 1 होता है, always remember, a square plus 2 a b, a square plus 2ab, and plus b square. यहाँ पर हम प्लस b square. ओके, और फर्दर सोल्यूशन यू कैन सी, और इसके नीचे 40 स्क्वायर है यहाँ पर. ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्टली किया हुआ है. व्हेन यू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, देन it become 1 square and 2t, 2 1s are 2, 2t squares are 2t square, and t square square means power multiply with outer power, which become 2 2s are 4. दरवाजा खोलेंगे t चेयर पकड़ेंगे. 4t square. So equation 1, when we applied squaring both sides, and now this new equation, this is a new form of square, and we consider it as equation number 3. When we apply squaring on equation number 2, so it become y square upon b square, and here right hand side we will open the formula, this term will solve with the help of a minus b whole square formula. ये जो है numerator term will be solved with the help of a minus b whole square formula,
and the final form you got, you will get a square minus 2ab plus b square upon 2t. 2t whole square is equal to 4t square. Students, are you getting my point or not? समझ आ रहा है बेटा? Hello Yes, students. Yes, miss. ma'am. Okay, so now you can see that 3 and 4 subtracting, there is uh, you can see the terms on right hand side are the same, but there is a sign difference. For solving this kind of equations, we subtract equation 4 from 3. We get x square upon a square minus y square upon b square. ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे subtract करेंगे. When you subtract the values, so here these are the fraction forms. So I am solving right hand side in front of you. When you take LCM, ये LCM के through solve होंगी class यहाँ पर. And then 4t square, okay, इसका LCM क्या होगा? 4t square का 4t square, दोनों का LCM क्या होगा class? Can you tell me? Fraction form you have given, इनका LCM क्या होगा? And we take LCM of the denominators. You have given terms in denominator 4t square in both side. दोनों terms में हमारे पास 4t square given है. Do you know? Do you have an idea? No. इसका आंसर No. square ही होगा. When we have same terms in denominator and when we want to take out the LCM, तो दोनों जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है, सो आंसर भी LCM में 4t स्क्वायर ही आएगा. वेरी इजी. ओके, और ऊपर वी राइट द न्यूमरेटर टर्म्स एज इट इज. इट बिकम 1 plus 2t square plus t4, and in the middle we have minus sign. So before writing the second term numerator, we will put the bracket here because minus is in the middle, and it will change the second bracket term sign. It becomes t power 4. Okay, and then when we open it, direct step you have given an example, but you will have to solve it step by step. It is very important, need to mention every step in the question. Okay, it become 2t square plus, when we open the bracket, then sign change, it become -1, and then minus minus plus. Okay class, and then minus plus, here sign are changed, sign will be changing, minus plus minus Minus. upon t 4t square. Okay class, now further solution, solve same term will be solved with the same term just like this. 1 cancelled from -1 because same term with opposite sign cancelled each other, and here we have t4 with plus sign and my t4 with minus sign, so they cancel each other. Same terms opposite sign, +1 -1 becomes 0. So that's why now here we have same terms and same sign, 2t square plus 2t square become 4t square, right class? And here 4t square cancel from each other, and here we have 1. इसका आंसर 1 है. Is there any confusion? यहाँ तक कोई problem? No, miss. Okay, so we have solved example. Let's see the exercise 8.1 and question number 5. हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ये हमारे पास गिवन था, ये एग्जाम्पल ही थी, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ये अभी हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1. अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास गिवन है क्लास. क्वेश्चन नंबर 2 we have given. Let us clear the space.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आता भी है एग्जाम में. यू हैव गिवन हिंट, बट एग्जाम में आपको हिंट गिवन नहीं होगी. यू हैव गिवन x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू b. अब यहाँ से इन्होंने सॉर्ट आउट इस तरह किया है कि y जो है ना, we take the reciprocal of the equations like 1 upon x. first of all take the reciprocal because of hint की हेल्प से अगर आप देखें, it become 1 plus t square upon a and 1 minus t square. Okay, comma, here I'm going to reciprocal of the, going to take the reciprocal as like this. It become 1 upon y, means denominator terms come in rearrange into numerator, and numerator terms come in the position of denominator. As you can see, it is the reciprocal. And when you according to given question, a cross multiply, a come in, a ones are a upon x is equal to 1 plus t square upon 1 minus t square. And then in the same way we will shift b on right hand side. So b is in the division position, यहाँ पे divide हो रहा है. When we shift on it on right hand side, it come in multiplied relation. b ones are b upon y is equal to 2t square upon 1 minus t square. क्लास इन दिस ये हिंट से हमने ये इस तरह से हिंट ये सॉल्व हुई. ओके, सो नाउ हियर दिस इज, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी. दिस विल बी कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 4 और दिस विल बी कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को वो किया है, और इक्वेशन 3 को, और इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 4 जनरेट हुई. ओके, फॉर फर्दर सोल्यूशन अब हम इसमें से क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर अब आप देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन we will write x a upon x is equal to no, a upon x minus b upon y. No need to apply squaring on both sides. Why? Let me tell you. 2t square upon, it's not a I, it's a 1. ये I नहीं है, 1 ही है. So here 1 minus t square and then minus 1. No class, here we will subtract equation. हम जो है ना पहले y की टर्म को रखेंगे एंड देन why I am changing the question because अभी आपको ये खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमने क्यों किया इस तरह से. according to given condition x a b upon y minus a upon x is equal to, पहले हम रखेंगे b and then 2t square 1 माइनस, पहले हम इसका सॉल्व करते हैं. लेट्स सी, आंसर 1 आना चाहिए हमारे पास. माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, एंड देन 1 माइनस टी स्क्वायर. यस क्लास, आंसर इसका एलसीएम क्या होगा इन टर्म्स का, कैन यू टेल मी? एलसीएम ऑफ दिस टर्म मिस 1 ही होगा. 1 क्यों होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर होगा. ओके, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं सेम है,
ये देखिए, दिस इज द एलसीएम, because in denominator we have 1 minus t square, not only the 1 minus t square would be the LCM of the denominator, given denominator. अब ये देखिए 2t square minus, and then we will write second numerator with the help of bracket, because minus sign is before the bracket. अब ये देखिए यहाँ पे हम माइनस साइन है तो इस वजह से हम यहाँ पर okay, now open the bracket, very easy question. Open the bracket and change, sign will change, minus plus minus, and then it become 1 minus t square, okay, and it become 1t square minus 1 and 1 minus t square. So class, here we cannot cancel the term with each other. अब देखें, हमने अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया कि b upon y, and in that type of question, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हमें 1 प्रूफ करना है. इससे आंसर 1 प्रूफ नहीं हो रहा क्योंकि साइन डिफरेंस है. डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर यू कैन सी 1 is minus form, 1 has minus sign, where in denominator 1 has positive sign. ये कैंसिल नहीं हो सकते. सो इसके लिए हमें ये करना होगा कि वी विल राइट a अपॉन x. हेयर आई एम डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं. b अपॉन y, इसमें हम लोगों को पहले a अपॉन x लिखना है, फिर हमें b अपॉन y, और उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर. दोनों का व्हेन यू टेक द एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लिया. अब हमने a की टर्म पहले लिखनी है बिकॉज यहाँ पे हमने a अपॉन x की वैल्यू पहले ली है, एंड देन माइनस 2t square. Now you can see that your answer would be will be 1. It become 1. We will write as it is, and plus minus minus 1t square minus 2t square become, ये देखिए क्लास, and now you got the answer. ये देखिए, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1. Is there any confusion class? Just subtract a upon x from just subtract b upon y from a upon x, you will. क्या तक क्लियर है? एक्सक्यूज मी मिस. जी यस समीरा. मिस आपने माइनस 1 माइनस 1 टू 1 टी स्क्वायर लिखा है कहाँ पर? ऊपर वाले में, ऊपर वाले में. जी तो यस, और नीचे माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो मिस ये कैंसिल कैसे होगा? तो ये इसी तरह तो हुआ. जस्ट हमने क्या किया है, हिंट यूज करके. ये देखिए, वी हैव क्वेश्चन a अपॉन x माइनस b अपॉन y, राइट. तो a अपॉन x की टर्म क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रहा, माइनस b की क्या है इक्वेशन, 2t स्क्वायर, ये रहा, और दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया, सेम आया ना. वी गॉट द सेम एलसीएम, राइट. तो यहाँ पे अब ये दोनों 1 एज इट इज लिखा, और प्लस 1 माइनस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया. प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया. अब आप देखें सेम है हमारे पास. जब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 है. अब ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं. इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब समझ आया? नो मिस, यस मिस समझ आया. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव एलिमिनेट a फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. एलिमिनेट करना है a को इक्वेशन में से, एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? अब आपने क्या करना है, दिस इज कंसिडर दिस इक्वेशन कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, एलिमिनेट a. सो a जो है ना, हमने एलिमिनेट करना है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे लिए एक a की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, इक्वेशन 1, मतलब जिसमें a जो है विदाउट पावर है, मतलब a की पावर 1 है, तो हम इजीली इसमें से a एलिमिनेट कर सकते हैं. सो हियर a हमें एलिमिनेट करना है.
टू इधर रिलेशन ऑफ ए एंड टू इज मल्टीप्लीकेशन, ये आप इसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन x अपॉन 2 इज इक्वल टू a बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग a। एंड यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से ये ऑब्जर्व करके इक्वेशन 3 बन गई। ओके, नाउ पुट दिस इक्वेशन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू फाइंड आउट निकाली है, एलिमिनेट की है। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 3. This is substitution method. As I am solving a square, in place of a we will write the value of a, which is equal to x upon 2 whole square minus 2 x upon t 2 and t minus 3. And when we open the whole square, जब हम इसका whole square open करेंगे, it become x square upon 4 minus 2 cancel from 2, and here we have only xt and minus 3. It's a t, okay, it's not a plus, and is equal to y. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, और यू कैन सॉल्व इट, ये हम या फिर हम इसको फर्दर सोल्यूशन ये हमारे पास पॉसिबल होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एंड माइनस एक्स टी प्लस वाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, और माइनस 3 वी विल राइट इनटू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। यस क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हेलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको ये? दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, पिक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड वेरिएबल, जिसमें से हमें एलिमिनेट करना है जिसको भी। जैसे इसमें ए को क्या हमने सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी पिक कर ली, इक्वेशन 1 जो थी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। एंड और दूसरी इक्वेशन में जिससे आप पिक करें वो उसमें नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 विद अनदर मेथड। हम इसको दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसमें भी हमें ए ही एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट, अब हम क्लास इसमें क्या करेंगे, हम ए और दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई एम गोइंग टू सॉल्व विद अनदर मेथड, बाय अनदर मेथड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू सॉल्व टू मेक द 8 कोफिशिएंट सेम, इन दोनों को हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 5 and we will multiply equation 2 by 4. इससे क्या होगा क्लास, let's see. Equation 1 will be multiplied by 5 and then for whole equation will be multiplied by 5. 3x is equal to 22. Okay, and then it become it's a 4a, it become 20, 5 4s are 20, a plus 5 3s are 15, okay, 22 5s are 110, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 10 plus 1, equation number 3. And when you multiply equation number 2 by this is equation number 3, and when you multiply equation 2 by 4, then it become 5a minus 4x is equal to 43. कैलकुलेटर यूज होगा इसमें क्लास, प्लीज यूज कीजिएगा। 4 5 20, a minus 4 4 16, x minus 4 3 12, 4 4 16
Answer is 172. 172. Okay. Yeah. Now, class, this is equation number 3, and this is equation number 4. Next step आप लोग बता सकते हैं? Do you have an idea how what should be the next step? क्या करेंगे अब next? Any idea? Miss, दोनों इक्वेशंस को शायद साथ लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. Subtract. इक्वेशन ऐसे लाइक दिस हम लोग इस तरह कर सकते हैं. कहेंगे वी विल राइट इक्वेशन 4 बिफोर 4 ऑन अपर साइड like this, addition and subtraction method. We will subtract the equation 3 from 4 and in this way plus 15x is equal to 110 and then plus sign change into minus sign change into plus plus sign change into minus. Here also sign change, क्योंकि हम subtract कर रहे हैं तो sign change हो जाएंगे. And here ये cancel हो गया. It is a, it's not a x, it's a a. क्योंकि eliminate होना था, eliminate means remove होना था. यहाँ से हमने ये eliminate कर दिया और here minus minus plus it become 31 minus 31x and is equal to, it become 2, it become 6. And when you solve 62 by 31 तो इसका आंसर होगा -2. This is the solution of equation question number 2. Yes class, is there any confusion? यहाँ तक क्लियर है? लो यहाँ Miss, तक लास्ट में आपने क्या किया? लास्ट में हमने ये किया कि ये हमने ऐड के माइनस माइनस प्लस with the minus sign because 16 has a greater is a greater number, so greater sign we will write with the number, and here plus minus minus subtract कर दिया. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए. ओके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास 31 इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 62 को 31 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा -2, क्योंकि माइनस साइन इधर है तो माइनस साइन भी उधर चला जाएगा. क्लियर है? Yes, Miss. Okay, this is question number 6, and now let's see the next question. Question number 8. It's a question number 7. It's not book में वैसे ही आपको 8 ही दिया जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको 7 कंसिडर करूँगी क्योंकि question number 6 is not the part of question. Okay class, यहाँ पर अब आप देखिए आपके पास question है eliminate y from the following equation. आपको इसमें से eliminate y करना है. So here you have different type of equation. Equation number 1 and equation number 2. Okay class. So here अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशंस के एक साइड का सेम होना ज़रूरी है. सो अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 इज द हैज अ पावर ऑफ 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 इज पावर ऑफ 1. ये जो है पावर 1 है, ये पावर 2 है. सो फॉर पावर सेम पावर्स वी विल अप्लाई द स्क्वायर ऑन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पावर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. इक्वेशन 1 के ऊपर मैं पावर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, जस्ट लाइक इट बिकम स्क्वायरिंग बोथ साइड. y upon b plus b upon y is equal to squaring both sides, and then it become 2c square. Now when we open the formula, solve the bracket, a plus b whole square. अब ये a plus b whole square के फॉर्मूले से होगा. So because there are two terms inside the bracket, this will be solved with the help of a plus b whole square. It is a square plus 2
just a second please. It is a square plus 2a 2ab 2a and b, and then plus b square b square b square upon y square is the b square term, is equal to 4c square. Now b square cancel from b square and y square cancel from y square. यहाँ तक कैंसिल होने के बाद हमारे पास फॉर्म जो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी. यहाँ तक क्लियर है क्लास? ये मैं स्पेस यहाँ से फिर क्लियर कर रही हूँ. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, miss. ओके. नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. मिडिल में जो 2 था हमारे पास, द मिडिल टर्म विच वी हैव 2, वी विल शिफ्ट इनटू राइट 2 ऑन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पर +2 क्या हो जाएगा? -2. ओके. एंड नाउ यू कैन सी दैट ये वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. कैन यू सी दैट left hand side of equation number 2 and left hand side of new equation which is equation number 3 are the same. जब हमारे पास when we have the same equation on one side, common equation on left hand side or right hand side in both equations, so we will compare the values of both equation. जब हमारे पास दोनों equations की same side एक side same होती है तो हम equations को क्या करते हैं? compare करते हैं. कंपेयरिंग एज यू जैसे कि आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते होंगे इक्वेशंस, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3. सो ये भी वही है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3. कंपेयर मीन्स क्या होता है कि यू विल राइट द अनदर ऑपोजिट साइड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ये देखिए इस तरह से राइट. अब हम कंपेयर में क्या होता है कि जो दूसरी साइड्स हैं वो यहाँ पे इस तरह आमने सामने लिख दी जाती हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. गॉट इट? और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर. ये +4c है, इधर आके क्या हो जाएगा? -4c एंड इज इक्वल टू -2 और यू कैन शिफ्ट द -2. यहाँ तक क्लियर है क्लास? हेलो, Yes, miss. डन है? ओके. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह सॉल्व होगा? कैन ये मुझे बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास y + 1/y = a है और 2 इक्वेशन हमारे पास y² + 1/y² है = 4a². कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ? ये आप खुद कर सकते हैं. दिस इज सेम एज पार्ट 1. पार्ट 1 की तरह ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा. डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3. Part 3 we have 1/y plus y is equal to 2l, or yes, it is 2l, and y minus 1/y is equal to 2m plus 1. On left hand side you can see the terms are same but the signs are different. So we will, for making a same side or comparing, we will write y plus, I am rearranging the terms. ये देखिए अब ये हमने इसको अरेंज कर लिया, इज इक्वल टू 2l एंड अप्लाइंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब हमारे पास साइन डिफरेंस होता है ना इस तरह से और पावर 1 होती है, देन वी विल अप्लाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आई एम सॉल्विंग डायरेक्टली हियर. ओपन द फॉर्मूला ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर. इट बिकम, ये जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ये हो जाएगा a² + 2, ओके आई एम शोइंग द स्टेप्स, 2ab and plus b square.
So here, open the whole bracket, it become 4l square. Here ये देखिए, ये से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी, इक्वेशन आएगी, इट बिकम 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. और ये जो है 2 आई एम शिफ्टिंग टू ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड, देन प्लस 2 बिकम -2. यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई कन्फ्यूजन? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप मिस किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ से ही +2 को उधर माइनस कर दिया. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 में क्या होगा क्लास? एज यूजुअल y माइनस 1 अपॉन y squaring both sides. Okay, this will be solved with the help of squaring whole square method, but and it also will be this bracket on right hand side will also solve with the help of squaring method. दोनों तरफ a प्लस बी और मतलब फॉर्मूले ओपन हो रहे हैं. तो ये जो फॉर्म है ये बन जाएगी, दैट फॉर्म विल अपेयर एज अ वाई स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज y और 1 अपॉन y कैंसिल हो जाएंगे, एंड इट बिकम 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये 4m स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो जाएगा. दिस विल ऑल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला of a plus b whole square. It become a square plus 2 2s are 4 and 4m and 1. ये क्लियर है यहाँ पर? ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 हमारे पास फॉर्मूले का और 2m हमारे पास क्वेश्चन में, तो 2s are 4m हो गया, राइट? इट बिकम y स्क्वायर माइनस प्लस, now I am shifting +2 on right hand side. Here 4m square plus 4m or -2 become +2. Here you can see that +2. So final form of the equation number 4 we will have जो हमारे पास नेक्स्ट फाइनल फॉर्म होगी वो होगी, इट बिकम 4m स्क्वायर प्लस 4m, 1 + 2 बिकम 3. आप बताइए क्लास, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या करना होगा हमें? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? जल्दी से बता दीजिए, टाइम फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए प्लीज जल्दी से. इक्वेशन 3 और 4 के साथ अब हम क्या करेंगे क्लास? यस, एनी आइडिया? कंबाइन करेंगे. यस, वी कैन कंपेयर द इक्वेशन 4 एंड 3. कंपेयर करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4l स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम कंपेयर करें क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम थी, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी एंड प्लस 3. अब ये क्या हो जाएगा क्लास? वेरिएबल एक तरफ हो गए, 4l स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एंड माइनस 4m इज इक्वल टू 3. ये हमारा फाइनल आंसर है. डन? गॉट इट? Okay. So next question. Yes. Yes, students. Any question? No. No. Okay. Question number 4, part 4 बताइए. अभी हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग टाइम इसका खत्म हो गया. Yes class. Question number 4 का solution बताइए, क्या कैसे सॉल्व करेंगे? How to start the question? y plus 1 upon y and y cube plus 1 upon y cube. क्या करना चाहिए इसके लिए हमें?